Satan and God is having a conversation of people in this earth. के लोगों के लिए God is telling Satan, God is proud. He's like, have you noticed this person? He's worshipping me. मेरी आराधना There is करता है। no one like him. कोई नहीं God है। is comparing. तुलना कर रहा है। Can God talk this way about you? Can God feel proud about you? क्या है? Can God feel happy that you are his son and daughter? Bible says God delights in the prosperity of his children. और वो Means what? When you're poor, he's sad. Even when you don't have relationships, he's sad. Saying, तो हम क्या बताना have चाहते an हैं? excellent spirit. They say, those who sleep, poverty will come very fast to you. When you don't have your own possession, you don't have a house, you think God feels proud. God said, wherever you place your leg, that place will be yours. God will give you the place. You need to take steps to get there. पिता इस समय के लिए धन्यवाद देते Thank हैं। you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद Thank देते you, हैं। Lord, that your word brings us light. धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें ज्योति Even देता as है। we learn from your word, जैसे हम आपके वचन से सीखे let that word bear fruit 100-fold in our lives. और वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए Let us not only be hearers but doers of your word. और हम आपके वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं पर उसे करने वाले बने। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। So today I want to speak to you about comparison. और आज हम जिस विषय पे सीखेंगे वो है तुलना करना। And we as a Christian, we hear about comparison where people tell us don't compare, you'll be dissatisfied and all this. I want to throw something different here about comparison. और हम जैसे मसीह हैं तो हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हमें अपनी तुलना जो है वो किसी से करनी नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो है वो निराश होंगे या असंतुष्ट होंगे। तो हम इसके ऊपर कुछ और आगे आपको बताना But चाहेंगे। people don't tell you the full thing about comparison. पर लोग आपको जो पूरी बात है तुलना के बारे में वो नहीं बताते हैं। Comparison is everywhere. और जो तुलना है वो हर जगह होती है। You are competing with your colleague. आप आपके जो साथीदार होते हैं जिसके साथ आप काम करते हो उसके साथ आपकी तुलना होती If है। you're doing a business, you have competitors. अगर आप व्यवसाय करते हो तो आपके साथ दूसरे जो व्यवसाय करने वाले हैं वो है। You are even competing with your brothers and sisters because your parents will compete that see this person and see this person. और आपकी जो तुलना है वो आपके भाई बहनों के साथ भी होती है क्योंकि आपके माता पिता ही जो है वो आपकी तुलना करते हैं। But comparison is good. पर तुलना होना अच्छी बात है। Even God compares. और परमेश्वर भी तुलना करता I'm है। showing you from the Bible. I'll show it from the Bible. Okay, let's go to Genesis chapter 4 verse 1 to 5. और हम उत्पत्ति का 4 अध्याय 1 से 5 वचन देखेंगे। Genesis chapter 4. This is the first book of the Bible, Genesis, and in that God is showing comparison because of the actions of people. और ये पहली किताब है पवित्र शास्त्र की जहाँ पे परमेश्वर जो है वो तुलना बताता है लोगों के कार्य के द्वारा। उत्पत्ति का 4 अध्याय 1 से 5 कहता है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। So Cain is the first child of the human race. और मनुष्य जाति का जो पहला पुत्र है वो केन है। Yeah. Go और ahead. फिर दूसरा वचन कहता है, फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया परंतु केन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंटों को तो ग्रहण किया परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। There were two brothers, Cain and Abel. और यहाँ पे 2 भाई थे, केन और हाबिल। Cain, there was a time for the offering. Cain bought the leftovers of offering to God. और जब समय आया भेंट चढ़ाने का तो जो केन है वो उसके पास जो बचा कुचा था उसमें से उसने परमेश्वर But Abel bought the best. पर जो हाबिल था जो सबसे बेहतरीन था God accepted Abel's offering. God rejected Cain's offering. There was a comparison between who gave what. और यहाँ पे परमेश्वर ने जो हाबिल की भेंट थी उसे स्वीकारा और जो केन की भेंट थी उसे परमेश्वर ने नहीं स्वीकारा। तो यहाँ पे परमेश्वर ने तुलना की दोनों की भेंटों के बीच। Your actions will be compared by God. तो जो हमारे कार्य है उसकी भी तुलना परमेश्वर के द्वारा की What जाएगी। did Nitin do? What did Vijay do? What did Suresh do? What did XYZ do? On that you will get your reward. और तुम्हारा परिणाम जो है उसके ऊपर मिलेगा कि जैसे नितिन ने क्या किया, विजय ने क्या किया, सुरेश ने क्या किया या किसी और ने क्या किया, परमेश्वर वैसी तुलना They करेगा। say ignorance is a bliss. और ऐसा कहा जाता है जानकारी नहीं होना एक भ्रम है। But you will be foolish if you be ignorant. You need to be aware of how God works. पर तुम अगर मूर्ख ठहरोगे अगर तुम्हें किसी चीज की जानकारी नहीं है क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि परमेश्वर कैसे काम All करता this है। while we have been hearing don't compare, but here God in the first book of the Bible is comparing between two brothers. In the family only is comparing.
और इतने सालों से हम यही सुनते आए हैं कि तुलना मत करो, तुलना मत करो, पर यहाँ पे परमेश्वर जो है वो एक ही परिवार में दो भाइयों के बीच में तुलना कर रहा है। Now don't get me wrong. God is not seeing how much you can give. और यहाँ पे हमें गलत मत लेना, परमेश्वर ये नहीं देख रहा है कि आप कितना दे सकते If हो। I am rich, I'll give more. It's simple. अगर मैं धनी हूँ तो मैं ज्यादा दूंगा, God ये is seeing from how much you are giving. पर परमेश्वर ये देखता है कि तुम्हारे पास कितना है और उसमें से तुम कितना If देते I'm हो। earning 1 lakh and giving 1,000, nothing big deal. और अगर मैं 1 लाख कमाती हूँ और उसमें से 1,000 रुपए परमेश्वर को देती हूँ तो कोई बड़ी बात Remember, नहीं। this is not tithes. It's not 10%. It's talking about offering. So I'm talking about offering, not tithes. I'm not talking about that 10% of our income. और ये यहाँ पे जो वचन है उसमें दशमांश की बात नहीं हो रही, उसमें भेंट की बात हो रही है। तो हम 10% जो देते हैं उसके बारे में So बात नहीं कर whatever रहे। you give in the kingdom, from how much you are giving, that God is seeing. तो जो कुछ भी हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं, हमारे पास कितना है, उसमें से कितना दे रहे हैं वो परमेश्वर देखता See, है। one day Jesus, when he came on this earth, he was sitting in the temple. और जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए तो वो एक दिन मंदिर में बैठे And थे he was seeing how many people are putting in the offering. और वो ये देख रहे थे कि भेंट में कितने लोग He क्या was कर not रहे checking हैं। how many people are praying, how many people are worshipping. He's seeing how many people are putting in the offering. और वो Read the Bible. कि ये नहीं देख रहे थे कि कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं या कितने लोग आराधना कर रहे हैं, पर वो ये देख रहे थे कि कितने लोग भेंट चढ़ा रहे हैं। Because for offering, no, people think 10 times. Freeze, they think money. अरे भगवान. क्योंकि भेंट देते वक्त जो है लोग जो है वो 10 बार सोचते हैं क्योंकि उनके पैसे जाते हैं। They'll give you time. वो आपको समय देंगे, They'll give you everything else. वो आपको सब कुछ They will देंगे, help you. वो आपकी मदद But when करेंगे। it comes to money, they will run deep in their pockets. They know अरे पैसा इधर नहीं, पीछे पैसा पीछे. Remove it, give it. और जब पैसों की बात आती है तो वो अपने जेब जो है वो इतने टटोलते हैं कि उन्हें पता नहीं रहता है कि वो क्या दें। And here Jesus saw everybody putting in the offering. और यहाँ पे यीशु मसीह ने देखा कि हर कोई अपनी भेंट चढ़ा Then रहा a था। widow came and put 2 copper mites. और यहाँ पे एक विधवा आई और उसने 2 जो तांबे के जो सिक्के थे वो डाले। Jesus said she has put the most compared to the rich people who put in the offering. और यीशु मसीह ने कहा कि इस स्त्री ने जो है वो सबसे अधिक डाला है बाकी लोगों की तुलना में। Why? Because she put everything what she had. और वो क्यों? क्योंकि उसके पास जो कुछ भी था उसने सब दे दिया। I believe when the offering time goes, और जैसे पास्टर ने कहा कि वो ऐसा मानते हैं कि जब भेंट का समय आता है it's not Asher and Zion coming with offering. और वो एशर और जायन नहीं आते हैं दान लेके, The Holy Spirit is seeing who's putting what. और पवित्र आत्मा देखती है कि कौन कितना डाल रहा And है, on that you will be blessed. और उसके ऊपर जो है आपको आशीष I tell मिलेगी। you, last week और गए सप्ताह we got increments from TCS. और पासन की जो है वो पगार में बढ़ोतरी हुई TCS हाँ, से। दूसरे लोगों ने मेरे को मेरा इंक्रीमेंट मिल गया. Not great, but okay. कुछ काम नहीं कर क्या मिला, good, praise God. पासन की जो है वो पगार में जो है वो बढ़ोतरी हुई। So when the offering, Sunday is the offering, right? और रविवार के दिन जो है हम दान देते So हैं। God said increase your offering by 10%. तो परमेश्वर ने इनसे कहा कि तुम जो भी भेंट चढ़ाते हो उसमें तुम तुम्हारे 10% जो है उसे Now बढ़ाओ। May is a time where my students go for vacations. और मई जो है वो ऐसा समय है, ये महीना है जहाँ पे इनके जो स्टूडेंट्स है जो गिटार सीखते हैं वो छुट्टी पे जाते So हैं। थोड़ा business was down. तो जो इनका जो थोड़ा व्यवसाय था वो थोड़ा कम चल रहा था। And God told me increase your offering by 10%. और परमेश्वर ने इनसे कहा कि तुम जो तुम्हारी भेंट है उसे 10% बढ़ाओ। And so I said, okay, I'll put फिर तेरा responsibility. I want my luxury life. बाद मेरे को इधर कितने चाहिए तो पर. और पासा ने कहा कि हाँ ठीक है, जैसा आप कह रहे हो वो वैसा मैं डालू करूंगा, पर उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। So this is how I have a deal. So I put that 10% increment, the offering, yeah, increased तो offering. इन्होंने अपनी जो भेंट है उसे 10% से बढ़ा के जो है वो दान दिया। I go home, और ये घर जाते हैं, I check my mobile. ये अपना मोबाइल देखते हैं। I had spoken to one student 1 year ago. और इन्होंने एक बच्चे से जो है वो बात की थी 1 साल पहले। 1 year back. 1 साल He told पहले। me when I'm ready, I'll call you. तो उसने कहा था कि जब मैं तैयार रहूंगा तब मैं आपको फोन He करूंगा। calls me. उसने इन्हें फोन He किया said, can we begin classes from tomorrow? और उसने कहा कि क्या हम हमारी क्लासेस कल से शुरू कर सकते हैं। So I said, yeah. So I said, how many classes you want to do? तो पास्टर ने कहा हाँ, और तुम्हें कितनी क्लासेस He चाहिए? said 3 per week. तो उन्होंने कहा हफ्ते में 3 बार। He pays me 9,000. हो गया. Set. और उसने इन्हें 9,000 रुपए दिए और उनका हो गया। When you learn to give, when you don't learn that you want to keep for your budget, मेरा ये बाकी मेरा वो bucket, when you pay God's bill, God will open the windows of heaven and bless you. तो जब आप देना सीखते हो और आप अपने तक नहीं रखते हो, पहले ये नहीं सोचते हो कि मेरे इतने खर्चे हैं, पहले मुझे ये करना है वो करना है मैं कर दूं, पर जब आप देते हो और जब आप अपना हाथ खोलते हो तो परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजे खोल के जो है आपको आशीष करता So है। here God is comparing Cain and Abel's giving. और यहाँ पे परमेश्वर जो है वो केन और हाबिल का जो भेंट है उससे जो है तुलना And करता है। many times God compares our giving.
और बहुत बार जो है वो परमेश्वर हमारी देने को जो है वो उसकी तुलना करता You know है। why? क्यों? Because giving shows how bad or how good your heart is. क्योंकि जो देना होता है वो ये दर्शाता है कि हमारा जो हृदय है वो कितना अच्छा और कितना बुरा है। Is it? And the Bible says, more blessed to give than to receive. और पवित्र शास्त्र भी कहती है कि जो देता है वो ज्यादा आशीषित होता है लेने से। So first, God compares our motives with others. तो पहला जो पॉइंट था वो ये था कि परमेश्वर हमारे मकसद को जो है वो दूसरों के साथ उसकी तुलना करता Now है। let's go to Luke chapter 15 verse 16 to 17. Luke chapter 15 verse 16 to 17 is the story of the prodigal son. और ये उड़ाव पुत्र की कहानी है। लूका का 15 अध्याय 16 से 17 वचन। लूका का 15 अध्याय 16 से 17 वचन कहता है, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। Okay. जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। Verse 18. 18 वचन कहता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। So Jesus is telling a story. There were two sons, और यहाँ the पे elder son and the younger son. यीशु मसीह कहानी बताते हैं कि दो बेटे थे, एक बड़ा बेटा था, एक छोटा The बेटा था। younger son says, "Father, give me the share of my property. I want to take the property money and go." और जो छोटा बेटा रहता है वो अपने पिता को कहता है कि जो मेरे हिस्से की जो संपत्ति है वो तू मुझे दे और मैं वो लेके चला I जाऊंगा। just want to go out of context here. Just giving you a tip. Whenever your children ask you property when you are living, do not give them anything because you never know when they'll put you out. और हम थोड़ा वचन से हटके आपको एक टिप देना चाहेंगे कि जब कभी भी आप जीवित हो और अगर आपके बच्चे आपसे अपना हिस्सा मांगते हैं तो उन्हें मत दो, क्योंकि वो अपना हिस्सा ले लेंगे और आपको घर से बाहर निकाल मेरे देंगे। बच्चे तो बहुत अच्छे, देना 1 करोड़ के हाथ में, देखते कितना अच्छा हो जाता है। Don't, because money, I have seen big rich people becoming beggars because they put everything in their son's name before they die. और हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे पास्टर ने कहा कि उन्होंने ऐसे बड़े बड़े धनी लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चे के नाम पे कर दी है और उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, भिखारी बना दिए। So my dad, he is placed, he's made like a, not like a will, when he, for the house, for his house. और पास्टर सौतर ने जो है वो एक विल जैसा नहीं पर उनके घर के लिए उन्होंने बनाया He है। says after he dies, उन्होंने कहा कि जब वो मरेंगे everything what he has, जो कुछ भी उनके पास है, sona, chandi, sab, whatever he has will belong to my mother. और उन्होंने ऐसा लिखा है कि जो कुछ भी उनके पास है वो सब जो है उनकी पत्नी का हो जाएगा। So I said, why you did this? तो पास्टर ने उन्हें पूछा, पास्टर ने, कि आपने ऐसा क्यों किया? You don't trust me. आप मुझ पे भरोसा नहीं He करते। says you're already richer than me. What can I give you? पास्टर सौतर ने कहा कि तुम मुझसे ऑलरेडी बहुत धनी हो, तो मैं तुम्हें क्या दूं? So he said, after the mother gets everything, whatever she will do. And that is this example I'm giving you. So you do the same. और फिर उन्होंने कहा कि जो मेरी जितनी भी संपत्ति है, जो भी मेरी चीजें हैं, वो मेरी पत्नी को मिलेगी और उसके बाद वो उसका क्या करना चाहती है वो करे। So this young child asks the money from the father. The father doesn't stop him. He gives the share of the property. तो ये जो छोटा बेटा था वो अपने पिता से उसका हिस्सा मांगता है और उसका पिता उसे दे देता है। Now he goes and wastes his money. और अब वो जाके जो उसके पैसे हैं उसे बर्बाद करता है। Sometimes when you get lot money, na, you can't handle that. और कई बार जब हमें बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं ना तो हम उसे संभाल नहीं And पाते, we fall into sin. हम जो है वो पाप में गिर So that's जाते why हैं। everybody who gets money, they get according to their capacity. Remember that. तो इसलिए हर बार जिसको जितने पैसे मिलते हैं ना उसकी जितनी काबिलियत है, Especially in the kingdom. I'm not talking worldly people. In the kingdom, you get money according to your capacity to manage that money. और खास तौर से हम राज्य की बात कर रहे हैं, संसार की नहीं, कि राज्य में जितने लोगों को जैसे पैसे मिलते हैं उसकी क्षमता के हिसाब से मिलते हैं कि वो कैसे संभाल Now सकते हैं। this fellow wasted all his money. अब ये व्यक्ति ने अपने सारे पैसे बर्बाद He कर दिए। becomes a pauper. वो एक भिखारी बन जाता है He works in a person's house and feeds pigs. और वो एक व्यक्ति के घर पे काम करता है और वो जो सुअर होते हैं उन्हें वो खाना खिलाता He है wanted to eat the food of pigs. और वो सुअर का खाना भी खाने को I तैयार want था। when you go home, search what pigs eat. Dirty things they eat. He wanted to eat that. और सुअर जो है वो जो गंदा खाना होता है वो खाते हैं, गंदी चीजें खाते हैं और उससे वो खाना खाना था। But the Bible says in verse 17, पर 17वें वचन में पवित्र शास्त्र कहता है it says he came to his senses. कि वो अपनी शुद्धि में He आया says, in my father's house, even the servants are in a better position than me, and here I am struggling. और उससे जो है वो होश आया और उसने कहा कि मेरे पिता के घर में जो मजदूर है, जो नौकर है, वो मुझसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है और मैं यहाँ पे जो है वो पीड़ा में हूँ। What is he doing? और वो क्या कर रहा है? He's comparing his life.
वो अपने जीवन की तुलना कर And रहा Jesus था। has put this verse. और यीशु मसीह ने वचन डाला है, You need to compare your life with some blessed people. तो हमें भी जरूरत है कि हम हमारे जीवन की तुलना जो है वो आशीषित लोगों के साथ Why करें। this person is blessed in church? Why I am not blessed? कि ये व्यक्ति कलीसिया में क्यों आशीषित है और मैं आशीषित क्यों नहीं हूँ। God will answer you that. तो परमेश्वर आपको उसका But if you उत्तर say देगा। नहीं मैं तो खुश हूँ, दाल रोटी खा के प्रभु का गुण गा रहा हूँ, थैंक यू जीसस, फिर उधर ही रहेगा। पर अगर आप कहोगे कि नहीं मैं खुश हूँ, आप जितने में हो उतने में संतुष्ट हो, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। I'm not saying don't be grateful, don't be thankful. That's a different topic. Here I'm saying you need to see who's blessed. Why my life is not like that. और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप धन्यवादी मत हो या आभारी मत हो, ये अलग बात है, पर आपको ये देखने की जरूरत है, परमेश्वर से पूछने की जरूरत है कि ये व्यक्ति क्यों आशीषित है और मेरा जीवन ऐसा क्यों है। When Pastor Joseph used to come, जब पास्टर जोसेफ आते थे, I used to always see his life. तो पास्टर हमेशा उनके जीवन को देखते थे How blessed he is. कि वो कितने आशीषित And I used to है। ask the Lord why I am not blessed like him. और वो हमेशा परमेश्वर से पूछते थे कि मैं इनकी तरह आशीषित क्यों And God नहीं। answers. और परमेश्वर उत्तर देता There would है। be some reasons why you are not blessed. और ऐसे कोई कारण होंगे कि आप आशीषित क्यों नहीं हो। Sometimes people say I don't want to compare myself. और कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं मैं अपनी तुलना नहीं करना चाहता। Because तू डर गया पहले से, कंपेयर करेगा हारने वाला जल्दी. That's why you get scared. और लोग जो है वो पहले से डर जाते हैं, इसलिए वो तुलना नहीं करते हैं। But I love comparison. और जैसे पास्टर ने कहा कि उन्हें तुलना करना बहुत I don't पसंद know, है। my blood starts roaming very fast. I get aggressive. I want to win now. और इनका खून जो है वो बहुत खोलने लगता है और इन्हें लगता है कि मैं बस जीतना चाहता हूँ, तो ये बहुत तुलना करते हैं। Comparison should bring the best out of you. और तुलना जो है जो तुम्हारे अंदर सबसे बेहतर है, If वो बाहर comparison आनी is चाहिए। motivation, it's good. If comparison is jealousy, it's bad. अगर तुलना करना आपको उत्साहित करता है, आपको आगे बढ़ाता है, तो अच्छी बात है, पर अगर तुलना करना आपके अंदर जलन लाता है, तो ये गलत बात है। God is same for everybody. परमेश्वर हम सबके लिए एक ही है। God is not biased. परमेश्वर पक्षपात नहीं He करता। will not do it for someone else and not do it for someone else. He will do it for everyone, provided what we need to do to get that. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी के लिए कुछ करेगा और किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। वो हर किसी के लिए सब कुछ एक जैसा करता है, पर वो ये हम पे निर्भर करता है कि हम वो चीज पाने के लिए क्या करते So हैं। you need to ask God, if you did it for that person, you can definitely do it for me. What do I need to do to get that blessing? तो आप परमेश्वर से कह सकते हो कि आपने उस व्यक्ति के लिए ये किया, तो आप मेरे लिए भी कर सकते हो, पर उसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत है कि मैं वो चीज पा सकूं। Now very important to do an apple to apple comparison. हाँ. और बहुत महत्व होता है कि हम सेब की सेब से तुलना करें। I have studied graduation. और पास्टर ने ग्रेजुएशन पढ़ा है। I am going to compare with Sundar Pichai. Will I win? I will never win. कितना भी प्रे कर लूं, I will not win. और अगर पास्टर अपनी तुलना जो है वो सुंदर पिचाई से करेंगे, तो वो कभी भी नहीं जीतेंगे। I am a pastor. पास्टर है। I am a part-time pastor. और ये I पार्ट am टाइम not a पास्टर। full-time pastor. और ये जो है वो पार्ट टाइम पास्टर है, So पूरी my टाइम की नहीं। comparison is with a part-time pastor, not with full-time, working full-time in the ministry. No, comparison is good when you compare yourself apple to apple. Otherwise you get frustrated. और ये अपनी तुलना जो है जो पूरी टाइम सेविकाएं करते हैं उनके साथ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि तुम जिस स्तर पे हो उसी स्तर के लोगों के साथ तुम्हारी तुलना करो। Like what happened to this person, the prodigals? He compared to the servants whom he saw in his father's mansion. He compared to them that their life is better than my life. और ये जो उड़ाऊ पुत्र है, इसने भी क्या किया, इसने अपनी तुलना जो है जो उसके पिता के घर में जो नौकर थे उनके साथ की कि उनका जीवन इसके जीवन से ज्यादा बेहतर है। So second thing is comparison also brings realization. तो दूसरी बात है कि तुलना करना जो है हमें एहसास भी दिलाता है। Comparison brings realization. तुलना जो है वो एहसास को भी लेकर आता है। Some people they keep on falling sick in the church. और कुछ लोग जो है कलीसिया में जो है वो लगातार बीमार पड़ते हैं। Every 3 months something or other happens to them. और हर 3 महीने में कुछ ना कुछ उन्हें होता रहता है। Body pain, back pain, head pain. I'm not a few oldies in our church. 60 if you're up, then it's okay. But you're young. और कभी उनका बदन दुखता है, कभी सर दुखता है, कभी पीठ दुखती है, और हम सब जो है वो जवान है। अगर हम 60 साल की उम्र में है तो वो अलग बात है। Some of the blessings we don't get is because we don't ask the question why. और कुछ ऐसी आशीष होती है जो हमें नहीं मिल पाती है, वो इसलिए क्योंकि हम ये प्रश्न नहीं पूछते हैं कि क्यों। You know why we don't ask the question? और हम ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते Because हैं? if we ask why, God will tell us the why. Because it's very hard to do those things, to be disciplined, to be motivated. It's hard. और हम ये प्रश्न इसलिए नहीं पूछते हैं
कि क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें इसका उत्तर देगा और हमारे लिए ये सारी चीजें करना जो है बहुत कठिन होगा कि हम अनुशासन में चले और अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाएं। Sometimes our eyes are blinded. और कई बार हमारी आंखें जो है वो बंद हो The जाती Bible हैं। says the thief comes to steal, kill and destroy, but I have come to give you life and abundant life. और जैसे पवित्र शास्त्र कहता है कि चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, पर मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए, बहुतायता का जीवन What is the देने के लिए। meaning of abundant life? और बहुतायता का जीवन का मतलब क्या है? Enjoying your life, victory over every aspect. कि अपने जीवन का आनंद उठाना और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जो है अपने आप को विजयी If पाना। sickness is coming in your body, sickness is overpowering you. You are not overpowering the sickness. और अगर बीमारी आपके जीवन में आती है तो आप उसके ऊपर हावी नहीं हो, वो आपके ऊपर हावी है। If poverty is coming in your family, poverty is overpowering you. तो अगर गरीबी आपके परिवार में आती है तो वो आपके ऊपर हावी है। I was just watching the news. और जैसे पासवान जो है वो समाचार देख रहे थे, The rupee value is going down. The dollar value is going up. और जो पैसे की जो कीमत है वो नीचे गिर रही है और जो डॉलर की कीमत है वो ऊपर बढ़ They're रही saying है। in the next 5 to 10 years, the middle class will be wiped out. और ऐसा कहा जाता है कि अगले 5 साल में जो है जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो जो है खत्म हो जाएंगे They're saying that to buy a house will be impossible. और घर खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। I'm telling you something. Be aware. We have less amount of time. When we are old, we will not like to shift our house in 11 months. Trust me on that. आपको यहाँ पे कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो आप जो है वो सतर्क रहो कि अभी समय है कि हम जो है वो कुछ करें, क्योंकि जब हम हमारी आयु बढ़ेगी, हम 60 साल के हो जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे, तब हमें नहीं अच्छा लगेगा या हम खुद भी नहीं कर पाएंगे कि 11-11 महीने में अपना घर बदले। So come to realization. Lord, why this sickness is coming? Why poverty is coming? Why am I always living a defeated life? तो अभी समय है कि हम जो है वो अपने होश में आए, अपनी शुद्धि में आए कि क्यों मेरे ऊपर जो है ये बीमारी आ रही है, या क्यों ये गरीबी मेरे जीवन में है, या क्यों मैं इस स्थिति से जूझ रहा हूँ। And so when you're comparing, then only you will realize. But if you're not comparing, you will never realize. पर जब आप तुलना करोगे तभी आपको जो है वो चीजों का एहसास होगा, अगर आप तुलना नहीं करोगे तो नहीं होगा। One of my known people. और पासवान के एक जानकार लोग हैं। So they are in a church where poor people are there. They are in a church where poor people are there. और वो एक ऐसी कलीसिया में है जहाँ पे गरीब लोग हैं। So when I meet them, I talk to them. My first question is, how much you are earning? तो जब पासवान उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका सबसे पहला प्रश्न यही रहता है कि तुम कितना कमाते And they हो। tell me everybody, अरे बड़े-बड़े CEO बोलते हो उनका प्राइस क्या है? तो how much you are earning? तो वो पासवान उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम कितना कमाते हो, So he told me an X amount. और उन्होंने एक रकम इन्हें And he बताई was very proud about it. और उसे बहुत घमंड था उसके ऊपर। I said, you are below the poverty line. और पासवान ने कहा कि तुम गरीबी की रेखा के भी नीचे आते हो। Why? You know why that they feel good? Because they are surrounded with all people like them only. और उन्हें क्यों ऐसा अच्छा महसूस होता है कि वो इतना कमाते हैं, क्योंकि वो अपने उनके आसपास जो लोग हैं वो वैसे ही लोग हैं। You don't scratch my back, I will polish your back. और तुम जो है वो मेरी तुलना मत करो, मैं तुम्हारी नहीं करूंगा। Don't live in such an environment. I like people to slap me with the truth. और ऐसे वातावरण में मत रहो, जैसे पास्टर ने कहा कि मुझे पसंद आएगा कि जो लोग मेरे मुंह पे सीधा सच कहेंगे। Tell me the truth. Even I tell you 10 truths after that. और तुम इन्हें इनकी सच्चाई बताओ, वो तुम्हें तुम्हारी 10 सच्चाई बताएंगे। So they are in that environment. They are thinking they are doing very well. तो वो ऐसे वातावरण में रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। Sometimes in our friends also are that bunch of losers. We are going to be the fourth loser in that. और कई बार हमारे दोस्त भी जो है वो ऐसे होते हैं कि 4 जो है वो निकम्मे लोग होते हैं और 5वां निकम्मा हम बनेंगे। Don't do that. तो हमें ऐसा नहीं We करना। have X limited time. तो हमारे पास एक सीमित समय है। Don't waste your time with such people. तो ऐसे लोगों के साथ अपना समय मत बर्बाद Because करो। first, what happens? You feel you're great. तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि आप बहुत महान हो, Because there is no competition. क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धा Everybody नहीं is in that below 50K per month. They are very बहुत अच्छा लग praise God. और सब लोग जो है वो एक ही पगार के बीच में जो है वो है। Don't be that. तो हमें वैसा नहीं And करना if all है। of them are also having sicknesses, you'll also be apart. God never created a body to get sicknesses. 1-2 sickness here and there, God will heal you. Even regularly having cold also is bad. Every time suk करते रहते. Every time their nose is blocked. और अगर हर बार जो है उनके शरीर में, अगर उनके जीवन में जो है वो बीमारियां हैं, तो वो बीमारी आपके भी शरीर का जो है वो हिस्सा बन जाएगी। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम जो है बीमार रहे। तो हर बार जो है वो सर्दी खांसी होना भी जो है वो गलत बात है। Only person who's happy when you're sick, not 2 people. One is the devil and one is the doctor.
और सिर्फ दो इंसान खुश होते हैं जब हम बीमार होते हैं। पहला होता है शैतान, दूसरा होता है And डॉक्टर। especially when you have mediclaim, they are more happy, more tell you to file you. और जब आपके पास मेडिक्लेम होता है तो वो और ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो ज्यादा आपसे पैसे ऐड So करते हैं। first, God compares our motives and actions. Second, comparison brings realization. तो हमारा पहला पॉइंट था कि परमेश्वर जो है हमारे जो मकसद है, हमारा जो कार्य है उसकी तुलना करते हैं, और दूसरा था कि तुलना करना जो है हमें एहसास दिलाता है। Now let's go to 1 Samuel chapter 18 verse 7 to 9. हम पहला शमूएल का 18वां अध्याय 7 से 9 वचन 1 पढ़ेंगे। Samuel chapter 18 verse 7 to 9. Yeah. पहला शमूएल 18 अध्याय 7 से 9 कहता है, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरी के साथ यह गीत गाई कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसके अब क्या मिलना बाकी है। Nitin, ये verse पढ़ा ना Nitin? What is this verse talking about? Saul has killed 1,000, David has killed tens of thousands. कौन से correlation में बात कर रहा है? Correct. So David killed Goliath. तो यहाँ पे दाऊद ने गुलायत को मारा था, He killed a giant. और उसने एक दानव को मारा था। So everybody was impressed by it. तो हर कोई उससे जो है वो बहुत प्रभावित हुए And थे। David is not the king, Saul is the king. और यहाँ पे दाऊद उस वक्त राजा नहीं था, साउल राजा था। Saul had the chair, David did not have the chair. और वो कुर्सी साउल के पास थी, दाऊद के पास नहीं थी। David kills Goliath. दाऊद गुलायत को मारता है। Everybody starts praising David. They say, David has killed tens of thousands, Saul has killed only 1,000. और हर कोई जो है वो दाऊद की जो है वो बड़ाई करने लगता है, वाहवाही करने लगता है, और वो कहता है कि दाऊद ने तो लाखों को मारा है, साउल ने 10,000 को मारा What है। happened in the next verse, in verse 8? और फिर 8वें वचन में क्या होता है? Saul was very angry. तो साउल जो है वो अति क्रोधित होता है। Angry is a symptom of jealousy. और क्रोधित होना जो है वो एक लक्षण है जलन का। Especially in women, people get jealous. Men, it is little less. But men also get jealous. Not that I'm covering up with men. But women, अरे ये तो और अच्छी लग रही है रे. और खास तौर से जलन जो है वो औरतों में जो है वो ज्यादा होती है आदमियों की तुलना में। And you praise some other female front of the other female, they get pissed off. और अगर आप एक स्त्री की जो है वो तारीफ करोगे दूसरी स्त्री के सामने तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। And here the ladies only are singing. Saul has killed thousands, David has killed tens of thousands. With the Bible, look, look at verse 7. और हम 7वें वचन में देखेंगे तो यहाँ पे जो स्त्रियां हैं वही जो है वो ये गा रही है कि दाऊद ने तो हजारों को मारा है, पर दाऊद ने लाखों को मारा है, शाऊल ने 10,000 को मारा Instead है। of thinking how can I be better, he got jealous. और ये सोचने के बजाय कि मैं कैसे अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, साउल को जलन हुई। I'm telling you something. It takes courage to admit you failed. और बहुत हिम्मत लगती है ये मानने के लिए कि आप जो है वो हारे हो। It takes courage to say someone was better than you. बहुत हिम्मत लगती है ये कहने के लिए कि कोई हमसे बेहतर है। Instead of saying what steps should I take so that I kill tens of thousands, he got angry. और ये सोचने के बजाय कि मैं ऐसे क्या कदम उठाऊं कि जहाँ पे मैं भी लाखों को मार सकूं, उससे जो है वो क्रोध आया। Are you that person who get jealous on other people's blessing? How many of you are saying you never get jealous? You never get jealous? I get. Praise. You get. You never. I want to pray for you. Right now. You never get jealous. And some people, you know, they quote this to in inverted commas. I'm so happy for you. और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जिसको किसी से जो है वो कभी भी जलन नहीं होती हो। I'll tell you something. You know who's happy for us? God. And after that, only our parents. और हमारे Trust me. After कोई happy नहीं किसके लिए भी. और हमारे लिए जो सबसे ज्यादा खुश होता है वो सबसे पहले होता है परमेश्वर, फिर दूसरा होता है हमारे माता पिता। Nobody else is happy. That's all false. Very rarely people are happy for us. और उसके अलावा और कोई जो है वो हमसे खुश नहीं होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुश होते हैं। So when you hear someone who became better than you, तो जब आप ऐसा सुनते हो कि कोई आपसे बेहतर बना, you get jealous. क्या आपको जलन होती Especially है? in the same field. खास तौर से जब आप दोनों एक ही क्षेत्र में, When your results come and your friend gets more than you. और जब आपके रिजल्ट आते हैं और आपके दोस्तों को आपसे ज्यादा अंक आते हैं, And then your parents come and think तू नल्ला and that will पल्ला. और फिर आपके माता पिता तुलना करते हैं कि देख तुझे कितना कम आया, उससे कितना अच्छा आया। Do we get jealous? क्या हमें जलन होती Do we है? get angry? क्या हमें गुस्सा आता है? Those are symptoms of jealousy. तो ये सारे जो लक्षण है वो जलन के And you know लक्षण। what happened after that? और फिर उसके बाद क्या हुआ? A depressing spirit entered Paul, Saul. और एक सताने वाली जो आत्मा है वो साउल के अंदर When आई। you get jealous, you open the door for the enemy to attack you. तो जब हमारे अंदर जलन आती है तो हम वो दरवाजा खोलते हैं शैतान के लिए कि वो हम पे हमला करे। So I had a friend in my school,
not school, in my locality, Shantinagar. और जब पासवान शांतिनगर में रहते थे तब उनका वहाँ पे एक दोस्त था And he used to get more marks than me. और उन्हें जो है इनसे ज्यादा अंक आते थे And he was 1 year younger to me. और वो 1 साल इनसे छोटे He थे used to get more marks than me. उन्हें उसे इनसे ज्यादा अंक आते And थे I used to get very angry. और पासवान को बहुत I'm क्रोध very आता था competitive. Again, I'm telling you, I'm very competitive. I might not show you that way, but I am. और But पासवान I'm not stupidity competitive. Someone brings Mercedes-Benz car, I will bring BMW. I will not do that. और पासवान के अंदर जो वो आत्मा है वो बहुत जो है वो प्रतिस्पर्धा वाली है कि वो एक दूसरे से जो हमेशा कम्पीट करते हैं So I got 68% in 10th. और इन्हें जो है वो 68% आया This 10वीं fellow में। was younger than me, so my father was saying, "See, you will get more." और ये जो इनका जो दोस्त था वो इनसे छोटा था तो पास्टर सौदा ने कहा कि अब देखना इससे ज्यादा I आएंगे said, "We'll see. 1 साल बाकी है, देखते हैं." तो पास्टर ने कहा कि हम देखेंगे उसको 1 साल After बाद 1 year, 1 साल के बाद he got 84. उससे जो है वो 84% I got pissed off. I got angry. What happened? और पासवान ने जब वो उसके अंक सुने तो पासवान को बहुत गुस्सा आया कि अरे ये क्या हुआ And he was an unbeliever. और वो एक अविश्वासी था I said, "He's worshipping the idols, and I'm worshipping Jesus. I didn't get." अरे, but you didn't study, fool. पासवान ने कहा कि अरे वो तो अविश्वासी है वो मूर्ति पूजा करता है और मैं तो यीशु की आराधना करता हूँ तो भी मुझे नहीं मिला पर पासवान ने कहा कि तुम मूर्ख हो तुमने पढ़ाई नहीं की So every time when we used to play, तो हर बार जब भी खेलते थे I साथ wanted में, to. He was 1-0 to me. He was 1 and I was 0. तो वो 1 था और ये 0 थे So I was always want to get back on him. तो पासवान हमेशा जो है उसके आगे निकलना चाहते थे And it should happen or should not happen, whatever, that's play, sport. और वो जो है वो खेल था तो कभी होता था कभी नहीं होता था But today in life, पर आज जीवन में I am way ahead of him. ये उनसे काफी आगे हम है तो call my dad, अभी तो बोलो ना, हमें main battle तो यही है भाई, यही है. तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये पास्टर सौदर को बोले कि अब आप जो है हमारी तुलना करो क्योंकि असली जीवन तो यही है So don't get into jealousy. तो जलन में जो है वो मत When पड़ो your comparison turns you away to anger and jealousy, that is 0. जब आपकी तुलना जो है वो आपको क्रोध की ओर लेके जाती है जलन की ओर लेके जाती है तो वो 0 हो जाता है When anybody goes above you, जब कोई आपसे आगे बढ़ता है see what they did. पहले ये देखो कि उसने क्या किया Just don't say अरे झोल किया है, you don't know. Analyze what did they do. They must have done something better than you. और कुछ भी जो है वो तुम्हारे मन में आता है तो ये मत करो कि उसने कुछ गलत किया होगा ऐसा मत कहो पहले देखो उसको जांचो कि उसने क्या किया है कि वो आपसे आगे निकले So comparison should bring the best out of us, not the worst. Saul, what happened? He got the worst. He got jealous, and the evil spirit attacked him. तो जो तुलना है वो हमारे अंदर से जो हमारा सबसे बेहतर हिस्सा है वो बाहर आना चाहिए ना कि खराब हिस्सा जैसे साउल जो है उसने वो तुलना की उसने जलन रखी और उसके अंदर जो है सताने वाली आत्मा Now, how can we not get jealous? तो हम कैसे क्या करें जिससे हमें जलन ना हो Tomorrow we'll pray, Lord, don't make me jealous. Pow kilo jealousy for you. और Not कल jealousy for you. If it works this way, it doesn't work. You know what God will do? God will give you a situation. He'll make your friend more prosperous than you. Then he says, if you're not jealous, so jealous. और कल हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर तू मुझे मेरे अंदर जो है वो जलन मत डालना पर हाँ परमेश्वर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति लेकर आएगा कि जहाँ पे हमारा दोस्त हमसे ज्यादा जो है वो आशीषित होगा या आगे बढ़ेगा और फिर वो देखेगा कि हमें जलन आती है कि Whenever नहीं we ask for patience, whenever we ask for anything, God will give us a situation to work on. और जब कभी भी हम परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं धीरज मांगे या कुछ भी मांगे तो परमेश्वर हमें को परिस्थिति देता है कि हम उससे पार कैसे निकलते Now हैं let's go to Daniel chapter 6 verse 3. हम दानियल का 6ठा अध्याय और 3रा वचन देखेंगे Daniel chapter 6 verse 3. दानियल का 6ठा अध्याय 3रा वचन कहता है Let's read. तब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए Now Daniel was in the land of Babylon. और दानियल जो है वो बेबीलोन की भूमि में It था was an unbeliever land. और वो एक ऐसी भूमि थी जहाँ पे सारे अविश्वासी थे Everybody was an unbeliever there. वहाँ पे हर एक व्यक्ति अविश्वासी Now था Daniel was a believer in the administrative part of the kingdom, and he was competing with unbelievers there who were in top officials. और यहाँ पे दानियल जो है वो एक अविश्वासियों के बीच में था और वो जो राजा का जो राज्य था उसमें जो है वो देख रेख करता था चीजें की संभालता था और उसकी तुलना जो है वो अपने आप की तुलना जो है वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी थे उनसे हो रही थी But the Bible says they found an excellent spirit in Daniel. पर पवित्र शास्त्र बताती है कि उन्होंने दानियल में एक उत्तम आत्मा पाई Out of all the unbelievers, he was the best. That's why God elevated him. The king also elevated him. और उन सारे अविश्वासियों में से दानियल जो है वो सबसे बेहतर था इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया राजा ने भी
ऊंचा उठाए। Are you a good employee in your office? तो क्या आप आपके ऑफिस में जो है वो सबसे अच्छे काम करने वाले And the हैं? foolish thing what we do is we work for Jesus. We don't work for people. We work for Jesus. और सबसे मूर्ख की बात ये होती है कि हम ऐसा कहते हैं कि हम लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, हम यीशु के लिए काम करते You हैं। are not my pastor. Jesus is my pastor. He will tell me to come to church on time. और हम ऐसा कहते हैं कि तुम मेरे पासवान नहीं हो, यीशु मेरे पासवान है, वो मुझे बताएंगे कि मुझे कलीसिया समय पे आना है। God uses even donkeys to speak. और परमेश्वर गधों का भी इस्तेमाल करता है बात करने के So लिए। pastors are much smarter than donkeys. तो पास्टर ज्यादा समझदार है गधों से। So here what happens? They found an excellent spirit in Daniel. और यहाँ पे उन्होंने दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा You know, पाई। excellent spirit, we always think about honesty. और उत्तम आत्मा हमेशा हम ये सोचते हैं कि ईमानदारी है, That's there. वो तो है, But you know what? It's efficiency also. पर उसकी जो काबिलियत है वो भी है। Efficiency is very important. जो काबिलियत होती है वो बहुत जरूरी है। Nowadays the word is productivity. और आज की तारीख में जो शब्द है वो ये है कि कुछ तो तुम काम निकालो। Some people cannot do the work till they wait for 9 hours in office. और कुछ लोग जो है वो काम कर ही नहीं सकते जब तक वो 9 घंटा ऑफिस में ना Because they रुके, are not multitasking. क्योंकि उनमें वो काबिलियत नहीं रहती है कि वो एक साथ बहुत सारे काम कर Because their सके। brains are clogged. उनके जो दिमाग है वो बंद है They're not multitasking. So they're not good employees. और उनमें वो काबिलियत नहीं रहती कि वो एक साथ जो है वो 2-3 काम कर ले। Some people think that they're working hard. कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। If you're working hard, your salary has to show in the bank that much. If it is not showing, means you're working bad. और अगर आप बहुत कड़ी मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा काम करते हो, तो आपकी जो पगार है वो आपके बैंक खाते में दिखनी चाहिए। अगर उतनी नहीं दिखती है तो आप बुरा काम कर रहे हो। Are you having excellent spirit? तो क्या आपके अंदर वो उत्तम आत्मा है? It's honesty. वो ईमानदारी है, It's punctuality. वो समय पे आना है। All समय पे great निकलना people है। have this trait. और All great people are punctual. और सारे जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनमें ये सारी बातें हैं कि वो समय पे आते हैं, They are not late. वो कभी देरी नहीं करते। Pastor Joseph, if the meeting is at 10 o'clock in the morning, और पास्टर जोसेफ भी ऐसे थे, अगर सभा जो है वो सुबह 10 बजे है, he used to come from Shivaji Park. वो शिवाजी पार्क से आते दादर। थे, दादर से, He used to be here at 9:45. और वो यहाँ पे जो है वो 9:45 पे So होते if the थे। pastor is a lousy pastor, और अगर तुम्हारा जो पासवान है वो एक थका हुआ पासवान है, he will beat you at the point of your need. तो वो आपको जो है आपकी जरूरत के टाइम पे So मिलेगा। he knew punctuality is very important. और वो बहुत बेहतर जानते थे कि समय पे आना बहुत जरूरी है। Dr. A.F. Pinto, the chairman of St. Xavier's Group of Schools. और डॉक्टर A.F. पिंटो जो है, जो चेयरमैन है सेंट जेवियर स्कूल के, People criticized him and his wife. Let me tell you something. He was a son of a farmer. और लोग जो है उनकी और उनकी बीबी की जो है वो बहुत बुराई करते हैं, पर हम आपको बताना चाहेंगे कि वो एक किसान के बेटे He थे। might have his faults. उनमें गलतियां होगी, I won't say that. हम वो नहीं He बताना was चाहते, always on time. पर वो हमेशा समय पे थे। That's why today he owns more than 200 schools. और इसलिए- More money than Shah Rukh Khan also. इसलिए आज पूरी दुनिया में जो है उनकी 200 से ज्यादा स्कूल हैं। And some people, they cannot come to church also on time. My God. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कलीसिया भी समय पे नहीं आ सकते। And I want to tell them, when I ask them, you come on time, they say, हाँ, I want to tell them, बस की नहीं है। And I tell Monica, अरे कुछ नहीं आएंगे, चल time पे। I know ना रे भाई, इतना टाइम से I know who's coming on time and who. और इतना समय हो गया है कि पासवान बहुत बेहतर जानते हैं कि अगर उन्हें को पासवान उनके मुंह पे भी कहेंगे ना कि अरे तू समय पे आ, तो वो नहीं आएंगे। They can come to church on time. You know when? 4 months में एक Sunday. और 4 महीने में एक रविवार में जो है वो कलीसिया समय पे आ सकते हैं। Punctuality everywhere. तो हर जगह जो है समय पे You होना। know why? Because you're valuing others' time. और ऐसा क्यों? क्योंकि तुम दूसरों की समय की कीमत And करते हो। such people are businessmen. और ऐसे लोग जो है वो You व्यवसाय करने cannot वाले। be a businessman if you're not punctual. Be an employee. जाके काम करो. और आप जब तक एक व्यवसाय करने वाले नहीं बन सकते हो जब तक आप समय पे नहीं आते हो। Because you have to be fast. The people who have made it top, they pick up their phones fast. Straight away the top the answer is. क्योंकि तुम्हें जो है हर चीज में जो है वो तेज होने की जरूरत है। जो लोग जो है वो बड़े बड़े व्यवसायिक है या जो है उनका फोन बजे या कुछ भी हो तो वो तुरंत जो है वो समय पे चीजें So करते they हैं। found an excellent spirit in Daniel. तो उन्होंने दानियल में जो है वो एक उत्तम आत्मा पाई। In Babylon, among all unbelievers, he stood out as a light of God. और पूरे बेबीलोन में पूरे अविश्वासियों के बीच में जो है दानियल जो है वो परमेश्वर की ज्योति के न्याय खड़ा रहा। We concentrate on honesty. I feel punctuality is very important. और हमारा ध्यान जो है वो ईमानदारी पे रखते हैं, पर हमारा ये मानना है कि समय पे आना बहुत जरूरी You है। know when you're not punctual, what it shows about you? You're careless.
और जब आप समय पे नहीं आते हो या चीजें नहीं करते हो तो ये क्या दर्शाता है कि आप एकदम बेफिक्र हो। But if you come to church right on time, on 5, sharp 5, you enter the door. पर अगर आप कलीसिया एकदम समय पे आते हो कि 5 बजे जो है आप अंदर That रहते हो, also is not great. You live life on the edge. तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप जो है वो छोड़ कर जी रहे हो। So when the edge breaks, you will fall down. और अगर आपका वो हिस्सा टूटेगा तो आप नीचे गिर You need जाओगे। to come 5 minutes early. आपको 5 मिनट पहले आना है, Then God will bless you. तब परमेश्वर आपको आशीष I have देगा। never seen God blessing an unpunctual guy. और जैसे पास्टर ने कहा कि उन्होंने कभी भी Very rarely, ऐसे इंसान को आशीषित होते हुए नहीं देखा है जो समय पे चीजें नहीं करता है, time to time. समय से समय पे। You know, I had before Monica, I had a girlfriend. और Monica knows this. हाँ, मोनिका सिस्टर से शादी होने से पहले पास्टर की जो है वो एक गर्लफ्रेंड थी। And on Saturday, I had a very busy schedule. और शनिवार को जो है इनका जो स्केड्यूल है वो टाइट होता था। I used to do night shifts. ये रात की On ड्यूटी करते Friday थे। night shifts. फ्राइडे को जो है ये रात की ड्यूटी करते Morning, I थे used to get up late. और शनिवार को ये सुबह देरी से Then I उठते had leaders meeting, I had choir practice, and I had to give time to this girl also. और फिर इन्हें जो है वो अगुओं की सभा में जाना होता था, इन्हें कोर प्रैक्टिस करना होता था और फिर इन्हें इस लड़की से भी मिलना होता था। And I used to make everything 3:30 to 4:30, 4:30 to 5:30, 5:30 to 6:30. और ये अपना हर एक चीज की जो है वो समय पे योजना करते थे कि 3:30 से 4:30 ये करूंगा, 4:30 से 5:30 ये करूंगा, 5:30 से 6:30। And I was never late. Before she used to come to bed, I was waiting there. और पासवान जो है वो इन तीनों चीजों में कभी भी जो है वो देरी पे नहीं होते थे। And she used to think how much efforts I'm putting. अरे मैं वैसा ही हूँ. और उसे लगता था शायद वो लड़की के आने से पहले जो है वो पासवान समय पे पहुंच जाते थे और उसे लगता था कि अरे ये कितना मेहनत करके आ रहा है। One thing about me, when I want to enjoy, I will enjoy. But when it's focus, no one can distract me. और एक चीज है पासवान के बारे में कि जब इन्हें जो है वो आनंद उठाना है, मजे करने हैं तब ये करते हैं, पर जब इन्हें किसी चीज पे एकदम ध्यान लगा के चीज करना है तो कोई भी चीज जो है इनका ध्यान नहीं भटका सकती। So comparison should bring the best out of you, not the worst. तो जो तुलना है वो तुम्हारे अंदर जो अच्छी बात है या बेहतर चीज है वो बाहर आनी Now चाहिए। let's look at one more example. Job chapter 1 verse 7 to 8. Job chapter 1 verse 7 to 8. हम अय्यूब का पहला अध्याय 7 से 8 वचन देखेंगे। Now some people pronounce this word J-O-B as Job. It's not Job, it's Job. और कुछ लोग जो है इस अध्याय को जो है इस पुस्तक को जॉब कह के कहते हैं, ये जोब है। हाँ, okay. Yeah, let us read it. अय्यूब का पहला अध्याय 7 से 8 कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। Satan and God is having a conversation of people in this earth. और यहाँ पे शैतान और परमेश्वर के बीच में जो है वो बातचीत हो रही थी पृथ्वी के लोगों के लिए। God is telling Satan, God is proud. He said, have you noticed this person? He is worshipping me. और परमेश्वर ने शैतान से कहा, जहाँ पे परमेश्वर को घमंड था अय्यूब पे, कि क्या तूने इस व्यक्ति को देखा है जो मेरी आराधना There करता is है? no one like him. उसके जैसा कोई नहीं। God is comparing. यहाँ पे परमेश्वर तुलना कर रहा है। Can God talk this way about you? There is no one like this person. क्या परमेश्वर आपके बारे में ऐसे बात कर सकता है कि आपके जैसा कोई नहीं? An inconsistent person. एक ऐसा इंसान जो नियमित रूप से कोई चीज नहीं करता। Can God be proud about you? क्या परमेश्वर आपके ऊपर घमंड कर सकता है? Can God feel happy that you are his son and daughter? क्या परमेश्वर हमसे खुश हो सकता है कि हम उसके बेटा और बेटी हैं? The Bible says God delights in the prosperity of his children. और वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो खुश होता है उसके बच्चों की सफलता में। Means what? When you're poor, he's sad. तो इसका मतलब ये कि जब हम गरीब होते हैं तो वो दुखी होता है। Even when you don't have relationships, he's sad. जब हमारा उसके साथ रिश्ता नहीं होता है, No, not उसके साथ, जब हमारा किसी परिवार के साथ रिश्ता नहीं होता है तभी वो दुखी होता है। One of my uncles, और पासवान की एक अंकल है he's a very good giver. और वो बहुत अच्छे व्यक्ति देने वाले हैं। And from beginning, he used to give his tithes. और शुरुआत से ही जो है वो अपना दशमांश When he करते used to थे। want 1,000 rupees, he used to give 100 rupees to God. जब वो 1000 रुपए भी कमाते थे तो वो 100 रुपए परमेश्वर को देते थे। And his wife is my daddy's real sister. और जो उनकी पत्नी है वो पास्टर सौदर की जो है वो सगी बहन है। So my auntie used to tell him, what you giving 100 rupees? We don't have money. They should stay in the chawls of Dombivli. और वो डोंबिवली की चौल में रहते थे और जब वो अपना दशमांश डालते थे तो इनकी आंटी उनसे कहती थी कि अरे तुम क्या दे रहे हो, हमारे पास तो पैसे नहीं I है। don't know where he heard this message. He was a Catholic that time. और इन्हें भी नहीं पता कि उन्होंने ये वचन जो है कहाँ सुना था। उस वक्त जो है वो कैथलिक थे Every month he used to give. और वो हर महीना देते थे। Today in a year, और आज एक साल में he gives 1 crore. 1 करोड़ वो Means देते how हैं। much is earning? मतलब वो कितना कमाते 10 हैं? crores.
10 करोड़ 1 crore per year. और 1 करोड़ वो एक साल में देते हैं। What am I saying? You know, we all feel that कुछ नहीं, कमा के देखो ना, मालूम पड़ेगा कितना मजा आएगा। और हम में से कुछ सोचेंगे कि 1 करोड़ तो क्या है, कुछ नहीं है, पर उससे पहले कमाओ तब पता See, चलेगा। people give you all this lecture. Money is not important. अरे कुछ नहीं money में. First earn money and then give those dialogues. I know I have not earned 1 crore, but I made decent amount, so I know how it feels. I was in Jangir, I was in Barcelona. I know the difference. और कुछ लोग जो है वो कहते हैं अरे पैसे में जो है वो कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं है, वो बेमतलब है। तो पहले तुम चीजें कमाओ, पहले तुम करो, फिर उसके बाद जो है तुम्हारी ये बातें करो। But he was consistent. पर वो नियमित रूप से जो है अपना दशवांश डालते थे And God blessed him. और परमेश्वर ने उन्हें आशीष 8 दिया। fails. वो उन्होंने 8वीं भी पास He नहीं wanted to की। retire. वो जो है रिटायर होना They चाहते are थे requesting money retire मत कर, we'll give you extra money. My God. और वो अपनी नौकरी से रिटायरमेंट लेना चाहते थे, पर उनकी कंपनी उनसे निवेदन करती है कि तुम मत छोड़ो, हम तुम्हें ज्यादा पैसे What देंगे। am I saying? तो हम क्या बताना Have an चाहते हैं? excellent spirit. तो एक उत्तम आत्मा And रखो। one thing I noticed about that guy, na, he's so rich. और एक बात पास्टर ने उनके बारे में देखी है कि वो इतने अमीर है 1 month he works from the rigs, 1 month he comes here. Those days. और उस जमाने में जो है वो 1 महीना रिग्स में काम करते थे और 1 महीना वो घर पे रहते थे। And when he used to come home, और जब वो घर आते he's थे not sleeping like a lazy fellow. He's working, he's doing jadu pocha. My God, this guy. तो वो एक आलसी व्यक्ति की तरह जो है अपने घर में जो है वो सोए नहीं रहते थे, पर वो घर का काम भी करते थे। They say, those who sleep, poverty will come very fast to you. और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सोए रहते हैं गरीबी उनके पास बहुत जल्दी आएगी। So if you're sleeping more than 7 hours, big problem. तो अगर आप 7 घंटे से ज्यादा सोते हो तो बहुत बड़ी And if समस्या you're है। sleeping less than 7 hours, still big problem. और अगर आप Body will be affected. 7 घंटे से कम सोते हो तो भी बहुत बड़ी समस्या है कि तुम्हारे शरीर पे असर होगा। So now this person, he bought one bike, long back. और इनकी जो अंकल है उन्होंने जो है वो बहुत लंबे समय पहले एक बाइक खरीदी In India, only 12 people have that bike. और भारत में सिर्फ 12 लोगों के पास वो बाइक थी। And in that, he's there, and one is Mahendra Singh Dhoni. और उन 12 लोगों में एक इनके अंकल है और एक महेंद्र सिंह धोनी Think है। about it when he sits on that bike. और अगर हम सोचें कि जब वो उस बाइक पे बैठते हैं Forget the people what they say. People are today they say, "Baba, tomorrow you become a beggar, they'll kick him." और लोगों के बारे में मत सोचो क्योंकि लोग तो कुछ भी कहते हैं, आज तुम्हारी बड़ाई करते हैं, कल तुम्हारी बुराई करते हैं। But when he sits on the bike, God feels proud that he's my son. पर जब वो उस बाइक पे बैठते हैं तो परमेश्वर को जो है वो घमंड होता है कि ये मेरा बेटा है। When you don't have your own possession, you don't have a house, you think God feels proud. God said, wherever you place your leg, that place will be yours. और जब अगर हमारे पास हमारी खुद की कोई संपत्ति नहीं है या जैसे हमारा खुद का घर नहीं है तो क्या हमें लगता है परमेश्वर खुश होता है, हम पे घमंड करता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जहाँ जहाँ तू तेरे कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। God will give you the place, परमेश्वर वो जगह हमें but देगा, you need to take steps to get that place. पर हमें उसके लिए कदम उठाने हैं वो जगह पाने के So लिए। here God is comparing people to the devil. He's saying, look at this person, he's my son. और यहाँ पे परमेश्वर जो है वो शैतान के साथ जो है वो लोगों की तुलना कर रहा था और कह रहा था कि इसको देख ये मेरा बेटा है। Now one of the things with comparison, और एक और बात है तुलना से we should never compare our lives with abstract people. No, we don't know. और हमें जो है अपनी तुलना कभी भी ऐसे लोगों से नहीं करनी चाहिए जिनको हम नहीं जानते। Whom we see on Instagram, अरे क्या पैसा वाला है? जैसे Do we हम know them? We have gone and eaten food with them. We don't compare. We get mad that way. जैसे हम इंस्टाग्राम पे कभी किसी को देखते हैं और हम सोचते हैं कि अरे ये कितना अच्छा है, इसके पास कितने पैसे हैं, क्या हम उन्हें जानते हैं कि हमारा कोई रिश्ता उनके साथ नहीं। Nowadays, some people just stand with a Lamborghini behind. Oh, मालूम पड़ा किसी और का Lamborghini खड़ा है सब। और आजकल लोग जो है वो लंबोर्गिनी के आगे जो है वो खड़े रहते हैं और अपनी फोटो खींचते हैं, पर पता चला कि वो खुद भी भाड़े की है। Some it's not even theirs. हाँ, So don't fall for the trick. We don't know them. तो हमें ऐसी चालों में जो है वो नहीं पड़ना है क्योंकि हम उन्हें नहीं जानते। We can compare only with people whom we know their personal life. और हम अपनी तुलना सिर्फ ऐसे लोगों के साथ कर सकते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके जीवन के बारे में हम जानते Now हैं। when you see American churches, और जब हम अमेरिकन की कलीसिया देखते हैं, big churches, बड़ी बड़ी कलीसियाएं, 1 lakh people, 2 lakh people per Sunday. हर एक रविवार जो है वो 1 लाख 2 लाख लोग आते हैं। Now if I start comparing with them, अरे मेरे में क्या है यार? I feel disappointed. और अगर पासन अपनी तुलना जो है उनकी कलीसिया के साथ करने लगेंगे तो वो निराश ही होंगे। Because if they come and start a church in India, they'll be bhagaud by the Indian people. India is a different. You can't compare. You have to do an apple to apple comparison. और वो जो है अगर भारत में आके अपनी कलीसिया खोलेंगे तो शायद उन्हें जो है वो यहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि हर जगह जो है वो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो हमें जो अपने
बराबरी का है उसके साथ ही तुलना Let's go to करना है। 1 Samuel chapter 1 verse 6 to 11. 1 Samuel chapter 1 verse 6 to 11. My last verse. हम पहला सैमुएल का पहला अध्याय 6 से 11 वचन देखेंगे। पहला सैमुएल पहला अध्याय 6 से 11 वचन कहता है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी, और वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पिनना उसको चिढ़ाती थी, इसके लिए वह रोटी और खाना न खाती थी। 8 Read till 11. इसलिए उसके पति एकलाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। Now there were 2 wives. A husband had 2 wives. You are not supposed to have 2 wives. So that's an Old Testament. और यहाँ पे एक पति था और उसकी 2 पत्नियां थी, जो So, पुराने करार में होता था। Now this the man was Elkanah. और एल्कना उस व्यक्ति का नाम He had था, 2 wives, Hannah and Benaiah. और उसकी 2 पत्नी थी, एक हन्ना थी और एक पिनन्ना थी। Now when you have 2 wives, double jealousy. और जब तुम्हारी 2 पत्नियां होती है तो तुम्हारे पास दुगनी जलन होती है। I don't know how they used to manage that time. और उस सब जमाने में वो कैसे संभालते थे। Hannah was barren. Benaiah had kids. और हन्ना जो है वो बांझ थी, और जो पिनन्ना थी उसके बच्चे थे। So Benaiah used to poke Hannah because her husband loved Hannah. So Benaiah used to poke Hannah. I have kids, you don't have, you're barren. And that time in the Old Testament, barren means cursed. और तो पिनन्ना जो है वो जानती थी कि उसका पति जो है वो हन्ना से प्यार करता है, तो पिनन्ना उसे चिढ़ाती थी कि तेरे पास बच्चे नहीं है और मेरे पास बच्चे हैं। और पुराने करार में उस जमाने में बांझ होना एक श्राप था। Sometimes in the family, some people get girls, some people get boys. उसमें भी competition है। मेरे पास लड़का है, तेरे पास लड़की। पागल है क्या? ये है। और कई बार एक परिवार में जो है अगर किसी को एक लड़का होता है, किसी को लड़की होती है, तो उसमें भी जो है वो तुलना करते हैं कि मेरे पास तो लड़का है, तेरे पास लड़की है। Children, whether girl or boy, और बच्चे जो है भले वो लड़का हो या लड़की, they are headache only. वो सरदर्दी होते हैं। It's not very very good girl, only peace. Boy, nothing it is. और ऐसा नहीं है कि लड़का है जो शांति होगी, लड़की है तो नहीं, कुछ नहीं होता है ऐसा। And God purposely gives us और परमेश्वर जानबूझ के हमें देता है, because we disobeyed Him to show us how it feels. क्योंकि हमने उसकी आज्ञा नहीं मानी थी, तो हमें बताने के लिए। So here this Benaiah is poking Hannah. और यहाँ पे जो पिनाना है वो हन्ना को चिढ़ा रही है, You don't have kids. तेरे पास बच्चे नहीं है। Now Hannah was bitter. और हन्ना जो है उसके अंदर जो है वो कड़वाहट, She was comparing. वो तुलना कर रही थी। See, she got kids. She's happy. I'm not. She prayed to God. This was a face-to-face comparison, which is right. God heard her, and God gave her Samuel. और यहाँ पे जो है वो अपनी तुलना कर रही थी कि पिन्नाना के पास जो है वो बच्चे हैं, और देख परमेश्वर मेरे पास बच्चे नहीं है, और वो परमेश्वर के सामने सामने बैठ के जो है ये तुलना कर रही थी। So when you're comparing, you need to know that other person's life. तो Just Instagram photos, Facebook cannot compare. तो जब आप तुलना करते हो तो आपको जो सामने वाला व्यक्ति है उसके जीवन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। Because people put their best smiling teeth, they brush it and they show photo in Instagram. और जो इंस्टाग्राम पे लोग हैं, हम उनके साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी सबसे जो अच्छी फोटो है वो डालते हैं। But they don't put when their husband was hitting them, they were crying. That they put Instagram. They don't do it. पर जब उनका समय बुरा था या कुछ गलत चीज उनके साथ हुई थी, वो ऐसी तस्वीरें नहीं डालते हैं। So don't compare with abstract people. तो जो अनजान लोग हैं उनके साथ अपनी तुलना मत We करो। don't know their life. हम उनके जीवन को नहीं जानते। So today I shared about comparison and repeat the points. तो आज हमने तुलना के बारे में सीखा और हम फिर से First, दोहराएंगे। God compares our motives and action. पहला था कि परमेश्वर हमारे जो मकसद है, जो कार्य है, उसकी तुलना करते हैं। Comparison brings realization. दूसरा था कि तुलना जो है हमें एहसास दिलाता है। Comparison should bring the best out of us, not the worst. और तीसरा है कि तुलना जो है, जो हमारे अंदर सबसे अच्छी बात है वो बाहर आनी चाहिए, ना कि बुरी। Comparison helps us to achieve our goals. चौथा था कि तुलना हमारी मदद करता है कि हम हमारे लक्ष्य को पा सके। And compare with people whom you know, not abstract people. और छठा था कि तुलना जो है उन लोगों से करो जिनको आप जानते हो, ना कि अनजान लोगों से। Today I want you to analyze your life. और आज हम चाहेंगे कि आप अपने जीवन को जांचो। You can ask yourself this question: are you living a life which God wants, or are you living a life which is not God approved? और अपने आप से जो है ये सवाल पूछो कि क्या आप वो जीवन जी रहे हो जो परमेश्वर चाहता है, या आप ऐसा जीवन जी रहे हो जो परमेश्वर नहीं चाहता। Next time if anybody says comparison, don't say I don't want to compare. Means you got scared.
और अगर अगली बार कोई आपको कहे कि तुलना करना है तो ये मत कहो कि नहीं मैं तुलना नहीं करना चाहता, मतलब आप डर गए हो। You don't need to be afraid of comparison. Comparison has to motivate you to be better. और तुलना से जो है आपको घबराना नहीं है, क्योंकि तुलना जो है आपको और उत्साहित करना चाहिए कि आप और बेहतर बन Let's सकते stand in God's presence. हैं। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो Let's जाएं। close our eyes. हमारी आंखें बंद करेंगे Let's think what we learned today about comparison. और हम सोचेंगे कि आज हमने तुलना के बारे में क्या सीखा। If comparison brings jealousy, that's wrong. Comparison has to bring motivation. और अगर तुलना जो है वो जलन लेकर आती है तो ये गलत है। तुलना जो है हमारे अंदर जो है वो उत्सुकता लानी Whether चाहिए। you like it or you don't like it, you have to live in comparison. भले आपको अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, आपको तुलना के अंदर रहना You है। will be compared here also and there also on top. और आपकी तुलना जो है यहाँ पे पृथ्वी पर भी की जाएगी और ऊपर भी की जाएगी। Let's close our eyes. हमारी आंखें बंद करेंगे। Let's think what we learned today, and if we let's compare our lives with some blessed people and say, Lord, why my life is not that way? और हम हमारी आंखें बंद करेंगे और सोचेंगे और अपनी खुद की जीवन को जो है वो तुलना करेंगे कुछ ऐसे आशीषित लोगों के साथ और परमेश्वर से पूछेंगे कि क्यों उसका जीवन आशीषित है और मेरा नहीं। What do I need to do to get there? और मुझे क्या करने की जरूरत है कि मैं भी वहां तक पहुंच सकूं। Father, we thank you for this time. पिता इस समय के लिए धन्यवाद देते Thank you हैं that from your word you showed us many things, Lord. और धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के द्वारा आपने हमें बहुत सी बातें दिखाई Let us be the best at what we do. और हम जो है वो सबसे बेहतर बने हम जो भी काम Let करते us हैं। have an excellent spirit like Daniel. Let us have faithfulness like Abraham. और हमारे अंदर जो है वो दानियल जैसी उत्तम आत्मा है और अब्राहम जैसी विश्वासी Let us पिता है। have courage like David. और दाऊद की तरह जो है वो हिम्मत आए Let us be truthful like Joseph. और यूसुफ की तरह जो है हम सच्चे I बने। pray that Lord, you only can help us. Give us situation where we can exercise these things. और परमेश्वर हम जानते हैं कि सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमें जो है वो ऐसी परिस्थिति में डालो जहाँ पे हम जो है इन चीजों पे कार्य कर If सकते हैं। next time anybody goes ahead of us, we're not going to be jealous. We're going to analyze what did that person do to get there. और अगली बार अगर कोई हमसे आगे बढ़ेगा तो हम उसके ऊपर जलन नहीं करेंगे, पर हम जो है वो जांचेंगे कि उस व्यक्ति ने क्या किया वहां पहुंचने के लिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Any prayer request you have? We'll pray.